Good morning, students. Class 3rd, welcome to the science classroom. What are we going to learn today? What are we going to study? We are going to study about living and non living things. Open the page number 122 of your classroom course book, term 1, and open the section of science. So, today we are going to study living and non living things. So, what are living things? What do you understand or what do you know about living things? What are living things? Do you know anything about living and non living? Yes, living things are like examples. Please give me examples, some example, few examples of living things. Do you know any living things? Any Do you know any example of living things? Yes, you are correct. You are correct. Living things examples are animals, plants, okay, humans are living things. And non-living things? Yes, water bottle, television, and yes, air, water. Yes, these are non-living things. Okay. Now, how can you say that this is living and this is non-living? Okay. आप कैसे बता सकते हो कि ये लिविंग थिंग है और ये नॉन लिविंग थिंग है? हाँ, बताओ मुझे, गैस करो। हाँ हाँ, कोई भी कुछ भी बताओ, मतलब थोड़ा भी बताओ मुझे। आप कैसे बताओगे कि ये लिविंग थिंग है और ये नॉन लिविंग थिंग है? अच्छा, मैं आपके सामने रखूं एक, ये रख दी मैंने आपके सामने साइकिल, ठीक है? लुक एट द पिक्चर्स एंड स्टेट वेदर दे आर लिविंग और नॉन लिविंग। अच्छा, अभी आपके सामने पिक्चर रख दी, अब आप क्या करो, इनको देखो और आप बताओ ये लिविंग है या नॉन लिविंग है। ये आपके सामने क्या रखी है? वेरी गुड, क्या है ये? साइकिल है। अब बताओ ये लिविंग है नॉन लिविंग है? वेरी गुड, क्या है ये? हाँ, नॉन लिविंग है ये तो। नॉन लिविंग है ये, ठीक है। अब नॉन लिविंग क्यों है? क्या ये ब्रीथ करती है? नहीं। ये सांस लेती है क्या? नहीं लेती है। क्या ये खाना खाती है? नहीं खाती है। फिर तो ये क्या हुई? नॉन लिविंग हुई, ठीक है। खुद से कभी इसको चलते देखा है? नहीं। तो अब हम सेकंड पिक्चर पे आते हैं। लुक एट दिस पिक्चर। ओके, नाउ यू आर गोइंग टू टेल मी दिस इज लिविंग और नॉन लिविंग? यस, इट इज अ, क्या है ये? इट इज अ बटरफ्लाई। ओके, ये क्या है? बटरफ्लाई है, ठीक है। अब ये बटरफ्लाई है, तो मुझे बताओ ये लिविंग है या नॉन लिविंग है? गलत गलत, नॉन लिविंग नहीं है ये लिविंग है ना। खुद से उड़ती रहती है, मर भी जाती है फिर ये कोई पकड़ लेता है तो इसे। तो ये क्या है? नॉन लिविंग है, लिविंग है, सॉरी, है ना, लिविंग है ना ये। नाउ लुक एट द थर्ड पिक्चर। डू यू नो व्हाट दिस इज? दिस इज अ house, and you know very well that house is a non-living thing. Okay, now it is a green color it is a green color bird known as parrot. Okay, and birds are living or non-living? Birds living होते हैं, नॉन लिविंग होते हैं? लिविंग होते हैं, खाना खाते हैं, वो उड़ते हैं, ठीक है, और सोते भी हैं। Now, fourth picture. Look at the fourth picture. You know what is it? What is it? It is a dog.
ओके, ये एक डॉग है, बहुत क्यूट है, ठीक है। और डॉग जो होते हैं आपको पता है क्या होते हैं? डॉग लिविंग है नॉन लिविंग है? लिविंग है ऑब्वियसली। ये खाता है, ये बोलता है, ठीक है, भौंकता है, ठीक है, इट बार्क्स, इट ईट्स। डॉग्स dogs can eat, dogs can bark, dog can move around, okay, and obviously they can run faster than us maybe. Okay, so dog is a living thing. Now let's move on to the chapter. Okay, living and non-living things. We see plants, animals, and vehicles around us. We see houses, ponds, rivers. We also see the stars, the sun, and the moon in the sky. Some of these things are made by men, so they are called man made things. Houses, roads, cars, buses, tables, chairs, and books are man made things. Plants, animals, and humans have not been made by men. They are given by the nature. They are called natural things. The stars, the sun, and the moon are natural things in the sky. Air, water, and soil are also natural things. Plants, animals, and humans have life. They are called living things. All the other things do not have life. They are called नॉन लिविंग थिंग्स। ओके, अब लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। वी सी प्लांट्स, हम अपने आसपास क्या देखते हैं? आप लोग अपने आसपास क्या देखते हो? जरा कुछ चीजों के नाम बताओ, आपके आसपास अभी क्या क्या है? यस, आपके हाथ में मोबाइल है, पेंसिल है, कॉपी है, वाटर बॉटल होगी, ठीक है, और क्या होगा? वाटर है, ठीक है, हाउस होंगे आपके आसपास। और आप जब बाहर निकलते हो घर से, थोड़ा सा अपने विलेज से, थोड़ा सा टाउन से, आप क्या कर जाते हो? थोड़ा सा दूर जाते हो तो आपको क्या दिखने लगते हैं? पॉन्ड्स दिखेंगे, रिवर्स दिखेंगी, है ना? और आपके घर के बाहर आपको रोड्स वगैरह दिखेंगे। और हम क्या देखते हैं? आप अगर दिन में बाहर निकलोगे तो आपको क्या दिखेगा? सन दिखेगा। और नाइट में अगर आप बाहर निकलोगे तो यू विल सी मून एंड स्टार्स इन द स्काई, ठीक है। अगर आप दिन में बाहर दिखोगे, निकलोगे तो आपको स्काई में क्या दिखेगा? सन दिखेगा। और अगर आप नाइट में बाहर निकलते हो तो आपको क्या दिखेगा? स्काई में स्टार्स और मून दिखेंगे। अब कुछ जो चीजें हैं जो हमने मेंशन किए ऊपर अभी, वो सब क्या है? कुछ चीजें मैन ने बनाई है, हमने बनाई है, और कुछ चीजें जो है वो क्या है? नेचुरल थिंग है जो नेचर ने बनाई है, जो पहले से वहां पर थी, ठीक है। अब कुछ जो चीजें मैन ने बनाई है, जो चीजें हमने बनाई है, वो क्या क्या है? मैन मेड थिंग्स क्या क्या है? आपके रिमोट जो हो गया वो मैन मेड थिंग है, इंसानों ने ही तो बनाया है, ठीक है। चेयर, टेबल, टेलीविजन, टेलीफोन, मोबाइल, ठीक है, बस, कार, रोड्स, ये सब किसने बनाया? हमने बनाया है ये, है ना? मैन ने बनाए, इंसान ने बनाए। अब क्या है? प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमंस हैव नॉट बीन मेड बाय मैन। और प्लांट्स, एनिमल्स वगैरह जो हैं, जो जानवर है और जो प्लांट्स है, वो कौन नहीं बनाता? वो हमने थोड़ी ना बनाए। प्लांट्स और एनिमल्स क्या आपने बनाए क्या? नहीं। तो हम उनको क्या बोलते हैं? नेचुरल थिंग्स बोलते हैं। अब द स्टार्स, द सन एंड द मून आर नेचुरल थिंग्स। और स्टार और सन क्या आपने बनाए? नहीं, हमने नहीं बनाए, ना किसी और ने बनाए। ये तो पहले से ही किस में प्रेजेंट है? नेचर में पहले से ही प्रेजेंट है। तो स्टार्स हो गए, सन हो गया, मून हो गया, ये सब क्या है? नेचुरल थिंग्स है। प्लांट्स, स्काई, एयर, वाटर, ये सब क्या है? नेचुरल थिंग्स है। अब प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमंस जो होते हैं, हैव लाइफ, इनके पास क्या है? लाइफ है। दे आर कॉल्ड लिविंग थिंग, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? लिविंग थिंग्स बोलते हैं। और बाकी जितनी भी अदर थिंग्स है, जितनी भी दूसरे चीजें हैं, वाटर, एयर, स्काई, स्टार्स, मून्स, ये सब क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दे रखे हैं, इनमें से कुछ लिविंग थिंग्स के हैं और कुछ नॉन लिविंग थिंग्स के हैं। मुझे बताओ, बेबी इज अ लिविंग थिंग और नॉट? बेबी लिविंग थिंग है या नहीं है?
यस, बेबी इज अ लिविंग थिंग। अर्थ, क्या अर्थ लिविंग थिंग है या नॉन लिविंग थिंग है? अरे अर्थ पे तो लिविंग थिंग्स रहती है, अर्थ खुद थोड़ी ना लिविंग थिंग है। क्या कभी अर्थ अर्थ से किसी ने बात की है? नहीं की। क्या अर्थ ने कभी आपसे बात की है? नहीं की। कभी अर्थ ने कुछ खाना खाया? नहीं खाया। ठीक है, तो अर्थ इज ए नॉन लिविंग थिंग। चेयर, चेयर इज ए, यस, चेयर इज ऑल्सो नॉन लिविंग थिंग। कंप्यूटर भी नॉन लिविंग थिंग है। क्या माउंटेन भी नॉन लिविंग थिंग होता है? यस, माउंटेन इज ऑल्सो अ नॉन लिविंग थिंग। बाकी ऊपर जो दे रखे हैं वो सब क्या है? लिविंग थिंग्स है। डॉग भी लिविंग थिंग है, अभी हमने ऊपर ही पढ़ा है। फ्रॉग भी लिविंग थिंग है, और ट्री भी लिविंग थिंग है। ट्री भी अपना खाना बनाती है फोटोसिंथेसिस से, है ना, और वो ग्रो करती है, बड़ी होती है। ठीक है, नाउ लिविंग थिंग्स आर डिफरेंट फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स इन मैनी वे। अब जो लिविंग थिंग्स होती है, जो लिविंग थिंग्स होती है वो क्या होती है? डिफरेंट होती है नॉन लिविंग थिंग्स से। जो नॉन लिविंग थिंग्स से लिविंग थिंग्स क्या होती है? डिफरेंट होती है। अब दीज वेज आर कॉल्ड फीचर्स, दीज वेज आर कॉल्ड फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। और यही क्या है? इसी को हम बोलते हैं लिविंग थिंग्स के कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स बोलते हैं। लेट अस नो अबाउट देम। अब जो फीचर्स है लिविंग थिंग्स के, उनके बारे में हम जानते हैं थोड़ा। लिविंग थिंग्स नीड फूड। लिविंग थिंग्स को किसकी जरूरत पड़ती है? फूड की जरूरत पड़ती है। हम फूड क्यों खाते हैं? खाना क्यों खाते हैं? जिंदा रहने के लिए। टू सर्वाइव वी हैव टू ईट फूड। ओके, अब ऑल लिविंग थिंग्स ईट फूड। सारी जितनी भी लिविंग थिंग्स होती है वो क्या करती है? फूड, फूड को खाती है। खाते हो ना आप लोग खाना? अभी आपका टाइम हो जाएगा खाना खाने का फिर से, फिर आप लोग खाना खाओगे। ठीक है, और हम खाना क्यों खाते हैं? जिस दिन आप लोग खाना खा के नहीं आते तो आप लोग कैसे रहते हो? गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून सर, ऐसे ऐसे आप लोग बात करते हो ना, क्योंकि क्या होता है, आप में एनर्जी लेवल कम हो जाता है। तो हम फूड क्यों खाते हैं? एनर्जी के लिए। और एनर्जी क्या करती है? एनर्जी हेल्प्स अ लिविंग थिंग टू डू वर्क टू लिव। और हमें एनर्जी क्यों चाहिए? काम करने के लिए। और काम नहीं करेंगे तो खाना कहाँ से मिलेगा? इसलिए एनर्जी की ज़रूरत बहुत होती है जिंदा रहने के लिए। और इसलिए हम क्या खाते हैं? फूड खाते हैं। एनिमल्स मूव इन सर्च ऑफ फूड। और एनिमल्स क्या करते हैं? जो जानवर वगैरह होते हैं वो खाना खाते हैं, और खाना खाने के बाद उनका फिर से क्या काम होता है? फिर से खाना ढूंढो, फिर खाना खाओ, फिर से खाना ढूंढो। है ना? कभी देखा है कुत्ते को काम करते हुए, गाय ढोरों को काम करते हुए? नहीं। जो एनिमल्स होते हैं, लायंस, काऊ और ये सब लोग क्या करते हैं? खाना खाते हैं, और फिर से किसकी तलाश में घूमते रहते हैं? खाने की तलाश में। ठीक है, नाउ एनिमल्स, प्लांट्स नीड्स एनर्जी टू मेक देयर ऑन फूड। और प्लांट्स को किस लिए एनर्जी चाहिए होती है? ताकि वो खुद का खाना खुद बना सके। ठीक है, प्लांट्स को कभी देखा है? प्लांट्स कभी आते हैं आपके घर के बाहर, बोलते हैं कि हमें थोड़ा खाना दे दो? प्लांट्स ने कभी आपसे बोला है कि खाना दो? नहीं, प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू। ठीक है, अब पीपल हु ऑब्जर्व फास्ट फील टायर्ड। दिस इज बिकॉज देयर बॉडीज डज नॉट हैव इनफ एनर्जी। अब क्या होते हैं, जो पीपल होते हैं, जो लोग होते हैं, क्या होते हैं? जल्दी से थक जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है? कि उनमें एनर्जी की कमी है, उनके पास बहुत ज़्यादा एनर्जी नहीं है। ठीक है, इसलिए वो क्या हो जाते हैं? जल्दी से थक जाते हैं। इसलिए खाया पिया करो। खाओगे पियोगे तो क्या होगा? एनर्जी आएगी। एनर्जी आएगी तो क्या करोगे? पढ़ाई करोगे, काम करोगे। ठीक है, अब इन दी इवनिंग दे ईट फूड एंड अगेन फील फ्रेश। और क्या होता है? जो लोग को दिन में क्या होता है? दिन में थक जाते हैं काम वाम करके, वो लोग क्या करते हैं? फिर से रात में क्या करते हैं? खाना खाते हैं, और फिर से क्या हो जाते हैं? एकदम उनमें फिर से एनर्जी आ जाती है, और एकदम ताज़ा महसूस करते हैं, फ्रेश महसूस करते हैं। ठीक है, दे फील फ्रेश आफ्टर ईटिंग द फूड, आफ्टर ईटिंग द डिनर।
दिस इज बिकॉज दे गॉट एनर्जी फ्रॉम फूड। और वो रात में खाना खाने के बाद फ्रेश क्यों फील करते हैं? क्योंकि उनको क्या आ गई है, उनके पास फिर से एनर्जी आ गई है। नाउ फर्स्ट, पहली चीज क्या थी, पहला फीचर क्या था लिविंग थिंग्स का? हम किसको लिविंग थिंग कहेंगे? जो खाना खाते हो। लिविंग थिंग्स नीड फूड और लिविंग थिंग्स ग्रो। अब लिविंग थिंग्स ईट फूड, फूड हेल्प्स देम ग्रो। ए बेबी फर्स्ट ग्रो इनटू चाइल्ड एंड देन इनटू एन एडल्ट, और द एडल्ट ग्रोज इनटू एन ओल्ड पर्सन। A chick grows into hen or a rooster. A baby plant grows into a big tree. Your bicycle does not grow like you. It is a non-living thing. अब क्या होता है? पहला तो हमने क्या बोला कि जो लिविंग थिंग्स होती हैं वो क्या करती हैं? खाना खाती है। लिविंग थिंग्स नीड फूड, उनको फूड की ज़रूरत पड़ती है। और लिविंग थिंग्स क्या करती है? ग्रो भी करती है। बड़े भी होते हैं हम लोग। लिविंग थिंग्स बड़ी होती है ना, धीरे धीरे बड़ी होती जाती है। देखो बेबी है, बेबी पहले चाइल्ड में कन्वर्ट हुआ, ठीक है, फिर चाइल्ड से एडल्ट में कन्वर्ट हुआ, फिर एडल्ट से ओल्ड में कन्वर्ट हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है, और फिर, ठीक है, ये क्या है? तो इससे क्या पता लग रहा है? लिविंग थिंग्स क्या करती है? ग्रो करती है। आपने छोटा सा क्या करा, घर में पौधा लगाया, वो धीरे धीरे क्या होता जाता है? हाँ बिल्कुल, बड़ा होता जाता है वो, ठीक है। आपने देखा होगा ना आसपास कितने सारे, आप जब छोटे थे तो आपके साथ वो पेड़ छोटा था और फिर धीरे धीरे क्या होता जाता है? बड़ा होते जाता है वो, जैसे जैसे आप बड़े होते हो, ठीक है। तो लिविंग थिंग्स क्या करती हैं? ग्रो करती हैं। आपके आसपास बहुत सारे अभी पपीज होंगे, छोटे छोटे, है ना, पपी होंगे। और आप काव्स भी देखते होंगे, गाय के बच्चे होंगे, कुत्ते के बच्चे होंगे। वो क्या करते हैं? धीरे धीरे आप उनको 1-2 महीने बाद देखते हैं तो उनकी साइज बड़ी होती जाती है। क्यों बड़ी होती है? क्योंकि वो ग्रो करते हैं, ठीक है। तो लिविंग थिंग्स ग्रो। अगर आप किसको लिविंग थिंग बोलोगे? जो क्या करती है? बढ़ती रहती है, जो ग्रो करती रहती है। ऐसे ही चिक को देखा है, जो छोटा सा मुर्गी का जो बच्चा होता है उसको हम क्या बोलते हैं? चिक बोलते हैं। चिकन, चिक चिक, ठीक है। वो चिक क्या होता है? वो भी क्या होता है? धीरे धीरे बड़ा होता है, तो हैन में या रोस्टर में कन्वर्ट होगा। अब ए बेबी प्लांट्स ग्रोज इनटू अ बिग ट्री। एक छोटा सा जो पौधा होता है वो बहुत ज़्यादा बड़े पेड़ में बन जाता है। क्या कभी आपने देखा है आपकी बाइसिकल कभी बड़ी हुई है? जैसे आप फर्स्ट और सेकंड क्लास में कोई सी बाइसिकल आपने बाय की, ठीक है, खरीदी, और धीरे धीरे जैसे जैसे आप 5th क्लास में आए, 6th 7th क्लास में जाओगे, तो वो वैसे वैसे बढ़ेगी। क्या बढ़ती है क्या बाइसिकल? हाँ, क्या बड़ी होती है क्या साइकिल? कभी देखा है आपने साइकिल को बड़े होते हुए? आपके घर में टेलीविज़न को 16 इंच की टेलीविज़न, 32 इंच की टेलीविज़न हो जाएगी। हाँ, नहीं होता कभी भी ऐसा, क्योंकि नॉन लिविंग थिंग्स ग्रो नहीं करती है, ठीक है। कभी देखा है आपने रिमोट का साइज बड़ा हो गया, टीवी का साइज बड़ा हो गया? नहीं होता है, वो हमेशा वैसा ही रहता है, ठीक है। नई टीवी आ सकती है बड़ी, ठीक है, लेकिन पुरानी टीवी बड़ी नहीं होगी अपने आप। इसलिए लिविंग थिंग क्या करती है? ग्रो करती है, और नॉन लिविंग थिंग ग्रो नहीं करती है। लिविंग थिंग्स ब्रीथ, लिविंग थिंग्स जो भी होती हैं वो सांस लेती है, ब्रीथ करती है। एयर हैज मैनी गैसेस। जो एयर होती है, हवा होती है, उसके पास क्या होती है? बहुत सारी गैसेस होती है, बहुत सारी गैसेस होती है। ऑक्सीजन हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई। जितने भी एनिमल्स होते हैं उनको किसकी ज़रूरत पड़ती है? ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है जिंदा रहने के लिए। दे गेट ऑक्सीजन फ्रॉम एयर। उनको ऑक्सीजन मिलती है एयर से, ठीक है। हवा से क्या मिलती है? ऑक्सीजन मिलती है। अब लिविंग थिंग्स नीड ऑक्सीजन टू ब्रीथ, और हमको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। जितनी भी लिविंग थिंग्स है, डॉग हो गई, काव हो गए, प्लांट हो गए, एनिमल्स हो गए, हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है सांस लेने के लिए। अगर आप अपनी नोज को कवर कर लोगे अपने हाथ से 3 सेकंड के लिए के, तो क्या होगा? यू फील अनईजी। आपको, आप परेशान हो जाओगे, ठीक है, ब्रेथलेस हो जाओगे। एट वंस यू रिमूव, और जैसे ही आप अपना हाथ हटाओगे अपनी नाक से, तो एकदम आपकी नोज क्या लेगी? बहुत बड़ी ब्रीथ लेगी, बहुत बड़ी सांस लेगी। When you close your nose, you do not get oxygen. This is why you feel uneasy. Your books, table, chair and pencil do not breathe. They are non-living things. अब क्या होता है?
लिविंग थिंग्स को ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। लिविंग थिंग्स क्या करती हैं? सांस लेती है। अब लिविंग थिंग्स ऑक्सीजन कैसे लेगी? नाक से लेती है। अब हम क्या करते हैं, आप 2-3 सेकंड के लिए अभी अपनी नाक को बंद कर दो, ठीक है, और मुंह को भी बंद कर दो, तो आपको क्या होगा? अनईजी फील होगा, आपको अच्छा नहीं लगेगा। और जैसे ही आप हाथ हटाओगे ना नाक से, तो एकदम जोर से सांस लोगे करके, और फिर आपको थोड़ा अच्छा लगने लगेगा। बाकी आपने कभी देखा है टेबल, चेयर, पेंसिल को सांस लेते हुए? कभी आप चेयर पे बैठे हो और चेयर एकदम से ऐसे करे, कभी हुआ है? लिविंग थिंग्स फील। लिविंग थिंग्स को क्या होता है? महसूस होता है, ठीक है। आप किसी भी पेट डॉग को टच करोगे, कैट को टच करोगे, है ना, तो क्या होगा? उनको पता लगेगा कि आप उन्हें टच कर रहे हो। कभी भी कोई भी आपको छुएगा, टच करेगा, तो आपको क्या होगा? फील होगा ना कि हाँ, किसी ने मेरे को टच किया है, ठीक है। कोई आपको गरम चीज लगा देगा, तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ, किसी ने गरम गरम चीज को मैंने छुआ है ना। कोई ठंडी चीज को आप छूते हो तो आपको पता लग जाता है वो ठंडा है, ठीक है। आपको भूख लगती है तो पता लग जाता है, ठीक है। The leaves of touch me not plant droop down when we touch them. This is because all living things feel. Your toys, books, and clothes do not feel hungry like you. They are non living things. अब क्या हुआ? जब भी आप किसी डॉग या कैट को पेट करोगे मतलब, पेट करना मतलब क्या होता है? पेट करना मतलब उस पर हाथ फेरना, उसको पालना, ठीक है। जैसे ही आप पेट करने जाओगे, उसे पालोगे मतलब टच करोगे, उसके सर पे हाथ फेरोगे, उसको बोलते हैं पेट करना। तो जब भी आप कभी डॉग या कैट को पेट करोगे, तो क्या होगा? वो क्या करेंगी? डॉग और कैट जो होंगी, अपनी जोर जोर से पूंछ हिलाने लगती है। और आपको जब भी भूख लग है ना, जब भी आपको फूड की खाने की जरूरत होगी, तो आपको क्या लगेगा? भूख लगने लगती है। और एक प्लांट को देखा है आपने, टच मी नॉट को, छुई मुई जिसको बोलते हैं, उसको आप जैसे ही छूते हो, उसकी सारी पत्तियां क्या होती है, सब सारी उसकी लीव्स जो होती हैं वो क्या हो जाती है? बंद हो जाती है। और ये क्यों होता है? क्योंकि लिविंग थिंग्स को क्या होता है? लिविंग थिंग्स महसूस करती है, लिविंग थिंग्स फील। आपने कभी देखा है टॉयज, बुक्स, क्लॉथ्स को, कि वो उनको? नहीं, कभी नहीं होता ऐसा। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो सब नॉन लिविंग थिंग्स है। अब आपके पास क्या होते हैं? सेंस ऑर्गन्स होते हैं। सेंस ऑर्गन्स क्या क्या है? आपने नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी में पढ़ा है, ठीक है। सेंस ऑर्गन्स में क्या क्या आ गया? आप स्मेल किससे करते हो? सूंघते किससे हो? स्मेल किससे करते हो? नाक से। सुनते किससे हो? कोई भी आवाज मारेगा आपको, है ना, छोटू, भैयू, कोई भी आवाज मारेगा, तो आप किससे सुनते हो? ईयर से सुनोगे। ईयर से क्या होता है? साउंड और बैलेंस होता है। साउंड सुनोगे। आईज, आईज से आप लोग क्या करते हो? विजुअल, ऑब्जर्व करते हो, देखते हो, ठीक है। टेलीविजन अभी आप किससे देख रहे हो? आईज से देख रहे हो, ठीक है। कान से सुन रहे हो। घर में अगर खाना बन रहा होगा तो आप क्या करोगे? नाक से सूंघोगे, ठीक है। नोज से आप स्मेल करोगे, और ईयर से हियर करोगे, है ना, सुनोगे। और आईज से ऑब्जर्व करोगे। और टंग से आप लोग क्या करते हो? टेस्ट करते हो। आइसक्रीम हो गई, रसमलाई हो गई, गुलाब जामुन हो गए, मैगी हो गई, इन, है ना, इन सब का टेस्ट आपको किससे आता है? टंग के कारण आता है। और स्किन से आपको क्या होगा? टच, प्रेशर और टेम्परेचर। स्किन पे अगर गर्म चीज रख दी, आपके हाथ पे अगर गर्म चीज रख दी, तो क्या होगा? एकदम से आपको पता लग जाएगा और आप अपना हाथ हटा लोगे, ठीक है। प्रेशर, आपको कोई ऐसे पकड़ के प्रेस करेगा, आपके हाथ को जोर से दबाएगा, तो आपको मालूम पड़ जाएगा, ठीक है। टच, कोई आपको छुएगा तो मालूम पड़ जाएगा, ठीक है। अब लिविंग थिंग्स फील हो गया, लिविंग थिंग्स ब्रीद हो गया, लिविंग थिंग ग्रो हो गया, और लिविंग थिंग्स नीड फूड हो गया। लिविंग थिंग्स के क्या क्या फीचर है? हम किसको लिविंग थिंग बोलेंगे? जिसको भूख लगे, जिसको खाना चाहिए, जिसको जो
ग्रो करता है और जो ब्रीद करता है और जो फील करता है उसको हम लिविंग थिंग बोलेंगे। अब लिविंग थिंग्स मूव ऑन देयर ऑन। लिविंग थिंग्स क्या करते हैं, खुद से क्या करते हैं, मूव करते हैं। आपने देखा, आप खुद से स्कूल आते हो, खुद से स्कूल जाते हो, खुद से घर आते हो, खुद से घर जाते हो, ठीक है ना। क्या आपको कोई उठा के रखता है? नहीं, आप लोग खुद से चलते हो, खुद से, है ना, सब काम खुद से करते हो। अब यू वॉक, क्या करते हो, आप अपने स्कूल खुद जाते हो। ए डॉग मूव्स विद यू इन ए पार्क, और आपके साथ जब डॉग घूमता है तो वो भी खुद ही घूमता है अपने आप क्या उसको चलाते हो, क्या धक्का देते हो? नहीं। ए बर्ड्स फ्लाई, और जो बर्ड्स होते हैं वो भी खुद से ही फ्लाई करते हैं, कोई उन्हें उड़ा नहीं रहा होता। ए फिश स्विम्स, मछली भी खुद से तैरती है। ए बटरफ्लाई फ्लाइज, जो बटरफ्लाई होती है वो भी खुद से फ्लाई करती है। और प्लांट भी अपनी पत्तियों को खुद ही मूव करते हैं, ब्रांचेस भी खुद ही मूव करते हैं, ठीक है। अब फ्रॉग्स जो होते हैं वो अपनी स्किन से स्किन से ब्रीथ करते हैं वाटर में, और लंग्स से लैंड में ब्रीथ करते हैं। स्नेक्स के पास लेग नहीं होते, इसलिए वो क्या करती है, क्रॉल करती है, जमीन पे रेंगती है मसल्स के थ्रू। रूट्स ऑफ ट्रीज ग्रोज एंड मूव टुवर्ड्स द सॉइल एंड वाटर, और जो रूट्स होती हैं ट्रीज की वो किस तरफ ग्रो करेगी, सॉइल की तरफ, मिट्टी में अंदर जाती है, और जहां वाटर होगा उस तरफ। अब नेम द एनिमल्स विच ब्रीद थ्रू देयर गिल्स। गिल्स किसके पास होते हैं, फिशेस के पास होते हैं। फिशेस के पास गिल्स होते हैं, वो उसी से ब्रीथ करती है, सांस लेती है। नेम एन एनिमल विदाउट लेग, विदाउट लेग जो जिनके पैर नहीं होते, ऐसे एनिमल्स का नाम बताओ। नहीं बेटा, बर्ड्स के पास पैर होते हैं, ह्यूमंस के पास भी पैर होते हैं, डॉग्स के पास भी होते हैं। किसके पास नहीं होते हैं? रेंगता कौन कौन है? नहीं भाई, लिजार्ड के पास भी लेग्स होते हैं, स्नेक्स के पास नहीं होते हैं, अभी पड़ा ऊपर। सांप को देखा है, सांप के कभी पैर होते हैं? नहीं होते हैं। नेम ए बर्ड दैट स्विम इन वाटर, ऐसे बर्ड का नाम बताओ जो वाटर में स्विम करता हो। पेंगुइन, ठीक है, और डक। डक भी तो बर्ड है, वो भी तो स्विम करती है। पेंगुइन भी स्विम करती है। और कौन? वाटर क्रो, ठीक है। अबे बाइसिकल और कार ऑल्सो मूव। अब क्या होता है, बाइसिकल भी मूव करती है लेकिन कार भी मूव करती है वो, लेकिन तब करेगी जब बाइसिकल पे आप बैठ के बाइसिकल को चलाओगे, राइड करोगे, तो ही मूव करेगी वो। कार भी आप जब खुद से चालू करोगे और चलाओगे तभी मूव करेगी, खुद से कभी मूव करती है क्या? नहीं, कभी नहीं मूव करती। इट टेक्स हेल्प फ्रॉम अदर्स, सो ए बाइसिकल और ए कार इज ए नॉन लिविंग थिंग्स, और इसको दूसरों की ज़रूरत पड़ती है मूव करने के लिए, इसलिए बाइसिकल और कार क्या है, नॉन लिविंग थिंग है। अब लिविंग थिंग रिप्रोड्यूस और हैव बेबीज। अब लिविंग थिंग क्या करती है, रिप्रोड्यूस करती है ना। रिप्रोड्यूस मतलब ऑफ स्प्रिंग, नए नए लिविंग थिंग्स बनाती है और बच्चे बनाती है, ठीक है। अब ए मदर डॉग गिव्स बर्थ टू हर पपी, एक जो मदर डॉग होती है, ठीक है, वो किसको, पपीज को बर्थ देती है। मदर केट किसको बर्थ देगी, किटन्स को बर्थ देगी। और आपकी मदर ने किसको बर्थ दिया, आपको बर्थ दिया। और एक मॉथ जो होती है वो क्या करती है, एग्स ले करती है। बर्ड्स भी क्या करते हैं, एग्स देते हैं, और फिर उनसे क्या निकलते हैं, छोटे छोटे बर्ड्स निकलते हैं, छोटे छोटे पक्षी निकलते हैं, फिर वो बड़े होते हैं, फिर वो एग्स देंगे, फिर उनसे ऐसे। तो लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस और हैव बेबीज। लिविंग थिंग क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करेंगे और उनके बच्चे होते हैं, ठीक है। जो चिक होती है, मुर्गी भी क्या देती है, अंडा देती है, उसी से चिक निकलता है। ए न्यू प्लांट्स ग्रोज फ्रॉम ए सीड, और एक नया प्लांट क्या, सीड से ग्रो करता है। यूर बाइसिकल नाइदर गिव्स बर्थ टू ए साइकिल नॉर इट लेग्स, इट इज ए नॉन लिविंग थिंग्स। और आपकी बाइसिकल जो होती है वो ना तो नई बाइसिकल पैदा करती है और ना ही अंडे देती है, तो इसलिए वो क्या है, नॉन लिविंग थिंग है।
अब लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग में डिफरेंस दे रखा है इधर। अगर आपसे कोई पूछे डिफरेंस बिटवीन लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग, तो आप क्या बताओगे? उसको ये टेबल शो करना और इस टेबल को लर्न कर लो। ठीक है, अब लिविंग थिंग्स के और नॉन लिविंग थिंग्स में अंदर के अंतर क्या क्या हो गया? आपने अभी तक पढ़ा है लिविंग थिंग्स क्या करती है? खाना खाती है। लिविंग थिंग्स ग्रो करती है। लिविंग थिंग्स ब्रीथ करती है। लिविंग थिंग्स मूव करती है ऑन देयर ओन। ठीक है, और लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस करती है। तो ये सब नॉन लिविंग थिंग्स में आप क्या लिखोगे? अपोजिट लिखोगे। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ग्रो, नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ब्रीथ, नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ईट फूड, नॉन लिविंग थिंग्स डज नॉट मूव ऑन देयर ऑन, डू नॉट मूव देयर ऑन। और तो ये सब डिफरेंसेस हो जाएंगे। देखो, living things need food and water, non-living things do not need food and water. Living things they breathe, living non-living things do not breathe. Living things move on their own, non-living things do not move on their own. Living things grow old and die, non-living things do not grow old and die. ठीक है, नॉन लिविंग थिंग्स कभी नहीं मरते, वो हमेशा नॉन लिविंग ही रहते हैं। ठीक है, लिविंग थिंग्स के पास सेंस ऑर्गन्स होते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स के पास सेंस ऑर्गन नहीं होते हैं। लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस करते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट रिप्रोड्यूस। ठीक है, चलो अब आज हमने पढ़ लिया है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ेंगे? डिफरेंस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। वी आर गोइंग टू स्टडी इन द नेक्स्ट लेक्चर व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन द नेक्स्ट लेक्चर, डिफरेंस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। सो गुड बाय माय फ्रेंड्स, गुड बाय क्लास। और आप लोग क्या करें? होमवर्क करें, लेक्चर को देखें। ठीक है, सुने, समझे, और बुक्स अगर आप नहीं लाए हैं तो ले आएं बुक्स भी, और उससे पढ़ें। और चैनल को सब्सक्राइब करो, जो रेड वाला बटन है उसको दबाओ, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो, ताकि जब भी लेक्चर लगे तो आप लोग को पता लग जाएगा उससे। नहीं तो ऐसे करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्या होगा, आप लोग को व्हाट्सएप पे वैसे ही भेज दिया जाएगी सब चीज़ें। ठीक है, ओके, गुड बाय।